ابھی میں بڑے ہی ادب و احترام سے اس ڈائس پر تشریف فرما تمام مہمانان سے التماس کرتا ہوں، اور خاص طور پہ ریاستی وزیر تعلیم محترمہ فوزیہ خان صاحبہ، جن کے پاس صرف تعلیمی شعبہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ سی ایم نے تقریباً 8 شعبے دیے ہیں، 8 وزارتیں جن کے پاس ہیں۔ میں التماس کرتا ہوں کہ جس طرح آج سے 10 سال قبل آپ نے اسی شہر کی فضاؤں میں تیر نیمکش کا اجرا کیا تھا، اپنے معتبر ہاتھوں سے، اپنے دست مبارک سے یہ خلیج کہاں سے ہوتی کا اجرا کریں اور تمام مہمانان اس کا ساتھ دیں۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیمکش کو، یہ خلیج اعجاز منظور عالم صاحب، عابد رضا صاحب سے التماس ہے کہ آئے محمود نواز صاحب، سمیر سید صاحب۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم وہی سمجھتے جو نہ تو بادہ خوار ہوتا۔ یہ خلیج کہاں سے ہوتی کی رسم اجرا محترمہ فوزیہ خان صاحبہ کے ہاتھوں۔ محمود نواز سر، سمیر سید صاحب بھی اسٹیج پر تشریف لائیں، میں التماس کرتا ہوں آئیں۔ بھنڈارے صاحب سے بھی التماس ہے، تمام بھنڈارے صاحب بھی آئیں۔ پولیس صاحب، سولاپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر نور مالدار صاحب، بشیر پرواد صاحب، فاروق سید صاحب۔ آج کا ایک یادگار لمحہ، بہت جلد جس طرح سے تیر نیمکش کے بعد خلیج کہاں سے منظر عام پر آئی ہے، اسی طرح اور آپ کی تخلیقات منظر عام پر آئیں۔ حضرات، یہ تاریخی ایونٹ کے بعد دوسرا جو تاریخی لمحہ ہے، دختر ہند، بھارت کی بیٹی، ڈاکٹر آف انڈیا اور فخر سولاپور کا ایوارڈ۔ میں گزارش کرتا ہوں، دتا ساونت سر کے تعلق سے جتنا کہا جائے اتنا کم ہے۔ آپ کا جو اہم ترین کام جس طرح سے ذکر کیا گیا کہ 70,000 گھروں میں آپ نے چراغ جلایا ہے خوشیوں کا، روشنی بکھیری ہے خوشیوں کی، آپ یقیناً سولاپور کا گورو ہیں، پراؤڈ آف سولاپور ہیں، فخر سولاپور ہیں۔ میں ادارے کے ذمہ داران سے گزارش کرتا ہوں اور فوزیہ میڈم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ فخر سولاپور کی ٹرافی آپ دتا ساونت صاحب کو تفویض کریں، اور لیجسلیٹو اسمبلی میں دتا ساونت صاحب کی آواز گونجے گی، وہ بھی جو ہے آگے اسی طرح ترقی کرتے رہیں، آگے بڑھیں۔ ٹرافی جو ہے میڈم کے ہاتھوں دی جائے گی فخر سولاپور کی، اور گل پوشی نور مالدار صاحب کے ہاتھوں ہوگی۔ فخر سولاپور، سولاپور کا گورو، گورو آف سولاپور، اور گورو آف سولاپور نور مالدار صاحب کے ہاتھوں یہ گل پوشی دتا اچھوت راؤ ساونت صاحب، پنڈرپور کے چھوٹے سے دیہات میں رہنے والے، آج بھی تینوں کے گھر میں رہنے والے، آج بھی آپ چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، کسان کے بیٹے، کسی پولیٹیکل پارٹی سے الائنس کے بغیر اپنی قابلیت پر جنہوں نے مہاراشٹر کی لیجسلیٹو اسمبلی میں جگہ بنائی ہے۔ اور فخر سولاپور اس لیے بھی ہے جب سے آزادی ملی اس کے بعد سے آج تک یہ سماج نامہ آنر آف ایکسلنس میڈم کے ہاتھوں دتا ساونت صاحب کو دیا جائے گا۔ آنر آف ایکسلنس خدمت خلق آرگنائزیشن آف انڈیا کی جانب سے۔ حضرات، خورشید صاحب نے اپنی تقریر میں بات کہی کہ کارپوریٹر کا معمولی الیکشن جیتنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، ایم ایل اے کا الیکشن اور ایم پی کا الیکشن اس سے ہارڈ ہوتا ہے، لیکن 5 کانسٹیٹیوئنسیز کو کور کرتے ہوئے کولہاپور، سانگلی، ساتارا، پونے اور سولاپور، 5 کانسٹیٹیوئنسیز میں اپنے لوگوں کو تیار کرنا اور بغیر کسی پولیٹیکل پارٹی کے سپورٹ کے جیتنا، اور آپ کی جیت میں ہم نے اس سے پہلے 2 مہینے قبل اردو زبان کے تعلق سے پروگرام رکھا تھا، رنگوان میں قوم کہاں جائے، وہاں پہ ہم نے اردو اساتذہ کی موجودگی میں اعلان کیا تھا کہ یقیناً جو ہے دتا ساونت صاحب مہاراشٹر کے لیجسلیٹو کونسل میں پہنچیں گے، تو آج آپ پہنچ چکے ہیں، اور اس میں اردو میڈیم کا اساتذہ کا بڑا ہاتھ ہے۔ یہ فخر سولاپور ایوارڈ تھا، اور ایک ایسا ایوارڈ جسے ہم چاہتے ہیں کہ نوبل پرائز سے بھی آگے بڑھے اور اللہ ہماری اس خواہش کو پورا کرے۔ دختر ہند کا ایوارڈ محترمہ فوزیہ خان صاحبہ کو اس لیے دینا ہے کیونکہ آپ پہلی مہاراشٹر کی وزیر ہیں، مسلم وزیر ہیں، لوگ ایم ایل سی بنتے ہیں 6 سال تک کہیں نظر نہیں آتے، مسلم کمیونٹی کے نام پہ جو ہے لیجسلیٹو کونسل میں جاتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیوں کے نام پہ جاتے ہیں، لیکن لیجسلیٹو
लेजिस्लेटिव काउंसिल में आवाज उठाने के लिए लोग डरते हैं, लेकिन यकीनन मैडम एक डेरर लेडी है। आपने दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाई, आपने नौजवानों की बेगत गिरफ्तारियों के खिलाफ आवाज उठाई, आपने ग्रांट के ताल्लुक से आवाज उठाई, बल्कि ऐसे कई मसाइल जो लेजिस्लेटिव असेंबली में रहने वाले भी इसे उठाने के लिए डरते हैं, मैडम ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहने के बाद ऐसे मसाइल उठाए। और बगैर आपकी किसी बड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट के बगैर आपकी सलाहियत को देखते हुए आपको एमएलसी बनाया गया, फिर मिनिस्टर बनाया गया और आपने उसका पूरा हक अदा किया है। आप वजीर बराए नाम नहीं बल्कि आप वजीर बराए काम हैं और हर डिपार्टमेंट पे आप बराबर वक्त देती हैं। और जो भी सवाल आप जब भी अधिवेशन चलता है, अगर आप अखबार पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा, अपोजिशन वाले हो या रूलिंग पार्टी के एमएलए हो, जो भी सवाल करते हैं आप उसका बहुत ही स्टडीड तरीके से उसका जवाब देती हैं। और आपकी कई खूबियां हैं जिसने मजबूर किया खिदमत खल्क को, और आपने इस अवार्ड को कबूल करके हमें इज्जत बख्शी, इस अवार्ड को इज्जत बख्शी। इसके लिए तमाम शहर की जानिब से, तमाम नौजवानों की जानिब से, तमाम उर्दू इदारों की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहसीन साहब का शुक्रिया। मैं गुजारिश करता हूँ नूर अहमद मालदार साहब को कि वो अपने हाथों डॉक्टर हिंद की ट्रॉफी और ऑनर ऑफ एक्सीलेंस मैडम की खिदमत में पेश करें। और मैं चाहता हूँ कि तहसीन भाई 5 मिनट के लिए आप जो है स्टेज पर आए। ये हमारे लिए बहुत यादगार लम्हा है। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट में इंशाल्लाह तहसीन भाई ऊपर आएंगे। तहसीन भाई की खिदमत में फूलों का हार और ये फूल कुरेशी, नूर मालदार साहब, डॉक्टर हिंद फौजिया खान साहबा, एक ऐसी खातून जिसने तालीमी शोबे को एक वकार बख्शा। जब फौजिया खान साहब का नाम आता है तो कई उम्मीदें तालीमी इदारों के लोगों में जागती हैं। फौजिया बाजी और तहसीन भाई की मौजूदगी में यह अवार्ड तहसीन भाई की खिदमत में फूलों का हार इदारे की जानिब से भारत की बेटी डॉक्टर हिंद डॉक्टर ऑफ इंडिया का अवार्ड, इस तारीखी मौके के हम सब गवाह हैं। अल्लाह आपकी वजह से इस अवार्ड को और इज्जत बख्शे। ये तहसीन साहब की खिदमत में फूलों का हार इदारे की जानिब से बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने इसे कबूल किया, इज्जत बख्शी। हज़रात, इस जज्बाती कैफियत से, इस जज्बाती कैफियत को हंसी के कहकहों में बदलने के लिए और उस हंसी में समाज की बुराइयों की अक्कासी के लिए सिराज साहब ने शहर छोड़ा। आप पहले पूना चले गए, पूना से फिर बम्बई में उमरा को आपने अपना मिस्टर बनाया, अपनी रिहाइश बनाई। आप जितना लोगों को हंसाते हैं, आपकी हकीकी जिंदगी में उतने दर्द भरे हुए। मैं कई सालों से आपको देखता हूँ और वो तमाम चीजें आपकी शायरी में भी झलकती हैं। मुसीबत, दर्द, बेचैनी, तड़प और गम ही मिलते हैं, हमारी जात को राहत के लम्हे कम ही मिलते हैं। बहुत होंगे जमाने में जिन्हें गम कुछ नहीं होते, बताए गर्दिश दौरान तुझे क्या हम ही मिलते हैं। और पकड़कर हाथ कंधों का कोई उस पार ले जाए, सिराज इस दौर में ऐसे फरिश्ते कम ही मिलते हैं। तो मैं चाहता हूँ, मैंने कहा था कि एक दिन सिराज साहब को पेश करेंगे, लेकिन हम पहले हंसेंगे, फिर उसके बाद संजीदा बातों पे गौर करेंगे इंशाअल्लाह। मैं तालियों की गड़गड़ाहट की गुजारिश करते हुए सिराज साहब का आवाज देता हूँ। आए ख्यालात का इजहार जो है शायरी में करें। जनाब सदर नूर अहमद मालदार साहब, मोहतरमा फौजिया खान साहब और मेरे बहुत ही अजीज़ फारूक सैयद साहब, शब्बीर शाकिर साहब, हॉल में और डाइस पर बैठे हुए सभी मोहतरम मोहतबर हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा दूसरा शेरी मजमुआ आपके सामने पेश करते हुए बड़ी खुशी होती है। पहला शेरी मजमुआ और दूसरा शेरी मजमुआ, इस ताल्लुक से मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि कैफियत जुनून में चंद नारा जो मैंने काले कर रखे थे, यार अजीज आसिफ इकबाल ने उसे किताबों की शक्ल ढाल दी। हर शायर को आसिफ इकबाल जैसा एक दोस्त मैसर है ताकि हर शायर की किताब शायर हो जाए। मैंने ये शेरी मजमुआ अब आप जान चुके हैं तो शफीक इंसान के नाम मंसूब किया है, जिसे दुनिया अदब
फारूक सैयद के नाम से जानते हैं। मैं खिदमत खल्क ऑर्गेनाइजेशन का बेहद शुक्रगुजार हूँ। खिदमत खल्क के सदर एजाज मंजूर आलम साहब, आबिद अंग्रेज साहब और आसिफ इकबाल साहब, मेरे इस 20 साल शहरी सफर में आप सबकी मोहब्बतें और दुआएं मेरे साथ रही हैं। मुझे उम्मीद है आपकी मोहब्बतें और दुआएं हमेशा मेरे साथ रहेंगी। अब जैसा कि आसिफ का हुक्म है, चंद किताब में आगे करूँ। जो बात बहुत दुख देती है उन बातों से मैं शुरू करता हूँ, फिर थोड़ा सा छिछोरापन भी आपको हंसाने के लिए आगे करता हूँ। सबसे पहले ये कि उर्दू के हर छोटी बड़ी तकलीफ के लिए उर्दू वाले जब इमदाद के लिए हुकूमत की तरफ आस लगा कर बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आंखों में उम्र भर का तमाशा लिए हुए हैं। आंखों में उम्र भर का तमाशा लिए हुए, माजी की रौनकों की तमन्ना लिए हुए, जख्मों से चूर बेरिदा संसद के गेट पर उर्दू खड़ी है हाथ में कासा लिए। ये ऐसे हालात हैं, इसीलिए जिम्मेदार हम भी हैं। सच बात कहूँ मैं तो बुरी सबको लगेगी, सच बात कहूँ मैं तो बुरी सबको लगेगी। उर्दू के लिए ये भले आसान नहीं है, रोटी है जिन्हें नाम भी उर्दू के मैसर, वो लोग भी उर्दू के वफादार नहीं। कुछ कंदिया कताब के बाद मिजाया कताब हाजिर करूँगा। आसमान करें, कल जो पार्लियामेंट में हुआ हंगामा या होते रहते आपने देखा होगा। नतीगर बात शर्माने की फिर भी सबब ये है जो मैं शर्मा रहा था। नतीगर बात शर्माने की फिर भी सबब ये है जो मैं शर्मा रहा था। गधे कुछ लग रहे थे रास्ते में, मुझे संसद भवन याद आ रहा। नतीगर बात शर्माने की फिर भी सबब ये है जो मैं शर्मा रहा था। गधे कुछ लग रहे थे रास्ते में, मुझे संसद भवन याद आ रहा था। यूपी के हालात और मरकजी हुकूमत का जो रवैया है वो सालों से आप समाप्त करें कि अभी मसरूफ है, मिलते ही फुर्सत भेज डालेंगे। अभी मसरूफ है, मिलते ही फुर्सत भेज डालेंगे। पुलिस थाने तो बेचे हैं, अदालत भेज डालेंगे। अभी मसरूफ है, मिलते ही फुर्सत भेज डालेंगे। पुलिस थाने तो बेचे हैं, अदालत भेज डालेंगे। हमारे रंगरों को तुम बहुत आसान मत समझो, मुनासिब दाम मिलते ही ये भारत भेज डालेंगे। चार दूसरे जैसे हालात है, एकजहती का देश में झंडा धरने वाला महेश कटे, एकजहती का देश में झंडा धरने वाला महेश कटे, पुलिस जब भी फायर करी तो मरने वाला महेश कटे। एकजहती का देश में झंडा धरने वाला महेश कटे, पुलिस जब भी फायर करी तो मरने वाला महेश कटे। ये कैसा कानून हमारे देश में आया नहीं मालूम, बम के धमाके कई भी होंगे करने वाला महेश कटे। एक दो प्रकार बतौर मुझे आप समाप्त करेंगे। जब से उम्र बढ़ी है कामा खिलाफ कर रही, जब से उम्र बढ़ी है कामा खिलाफ कर रही, ब्यूटिशियन के घर का डेली तवाफ कर रही। जब से उम्र बढ़ी है कामा खिलाफ कर रही, ब्यूटिशियन के घर का डेली तवाफ कर रही। समझो तो कैसा समझो, बोले तो नहीं समझ रही, चेहरे को झुरा है तो आईने को साफ कर रही। जब से उम्र बढ़ी है कामा खिलाफ कर रही, ब्यूटिशियन के घर का डेली तवाफ कर रही। समझो तो कैसा समझो, बोले तो नहीं समझ रही, चेहरे को झुरा है तो आईने को साफ कर रहे। और मुल्ला जी की जोरू रहे को फैशन क्या और मेकअप क्या, मुल्ला जी की जोरू रहे को फैशन क्या और मेकअप क्या। शौक है उसको फिल्मा का भी दीवानी का क्या होगा। मुल्ला जी की जोरू रहे को फैशन क्या और मेकअप क्या। शौक है उसको फिल्मा का भी दीवानी का क्या होगा। मुल्ला जी तो मुल्ली झुका को जन्नत में पूछेंगे बन, महशर के दिन अल्लाह जाके मुल्ला जी का क्या होगा।
मुल्ला जी तो मुंडी जी को जन्नत में घुस जाएंगे, पर महशर के दिन अल्लाह जाने मुल्ला जी का क्या होगा। और थोड़ी बची सो जिंदगी अच्छा संभाल रही, सेहत को पूरे ध्यान से नाना संभाल रही, थोड़ी बची सो जिंदगी अच्छा संभाल रही, सेहत को पूरे ध्यान से नाना संभाल रही। सिगरेट शराब पी को जवानी भला दिए, मस्का सिनेस खा को बुढ़ापा संभाल और ये चांदी से नौजवान की नजर के सुबह से शाम तक इजहार में मसरूफ है, शाम से फिर सुबह तक इकरार में मसरूफ है, सुबह से शाम तक इजहार में मसरूफ है, शाम से फिर सुबह तक इकरार में मसरूफ है। सर्वे करके देख लीजिए अपने हिंदुस्तान के 80% मोबाइल तो प्यार में मसरूफ है। आखिरी 4 है फकत घाटा मियाँ इसको सनम में कुछ भी नहीं, है फकत घाटा मियाँ इसको सनम में कुछ भी नहीं, सही बता रहा हूँ देशों के पेचो खम में कुछ भी नहीं, है फकत घाटा मियाँ इसको सनम में कुछ भी नहीं, सही बता रहा हूँ देशों के पेचो खम में कुछ भी नहीं। प्यार के चक्कर में उसके 4 दिन सपड़ा था मैं, 4 दिन के बाद देखा ATM में कुछ भी नहीं। ऐसा भी होता है। चालाक सालियों की अदा हमसे पूछिए, हंस के कैसे लूट लिया हमसे पूछिए, चालाक सालियों की अदा हमसे पूछिए, हंस के कैसे लूट लिया हमसे पूछिए। और जीजागिरी दिखाने के चक्कर में दोस्तों हमने भी कितना कर्ज लिया हमसे पूछिए। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। मैं बड़ी एहतराम से दत्ता सावंत सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वहाँ और मराठी में अपने ख्यालात का इजहार करें। वो अदाए दिल भरी हो या नवाए आशिकाना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातह है ज़माना। दत्ता सावंत साहब। हिंगोली हेल्थ ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडियाच्या वतीने आयोजित केलेल्या आजच्या या कार्यक्रमासाठी खास आलेल्या राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री आदरणीय खुशा खान मॅडम या देशामध्ये एक वेगळंच उदाहरण झालेल्या आणि आपल्या सोलापूर जिल्ह्याला एकमेव विद्यापीठ मिळालेल्या या विद्यापीठाचे व्हाईस चान्सलर आदरणीय मालार सर, ज्यांच्या पुस्तकाचं या ठिकाणी प्रकाशन केले आणि खास या कार्यक्रमासाठी आलेले नूर अहमद मालार साहेब, फारुख शहीद साहेब, सिराज सोलापुरी साहेब, या व्यासपीठावरती बसलेले सगळेच मान्यवर आणि सोलापूर जिल्ह्यामध्ये राजकीय क्षेत्रामध्ये, सामाजिक क्षेत्रामध्ये आणि शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये त्यांनी फार मोठं काम केलं आहे अशी या सोलापूर जिल्ह्यातील सगळेच मोहनीय व्यक्तिमत्व या कार्यक्रमासाठी खास करून आलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातल्या शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षिका बंधू आणि भगिनींनो, या ठिकाणी या पुस्तकाच्या प्रकाशनाबरोबरच त्यांनी आदरणीय खुशा खान मॅडमना आणि मला जो एक या ठिकाणी पुरस्कार दिला आहे, खरं तर मी चळवळीतला कार्यकर्ता आहे। मॅडमनी राज्यस्तरावरती मोठं काम केलं आहे आणि ते सरकारी बंधनात राहून सगळं केलं आहे की ज्याचा परिणाम म्हणून आपण 15 जूनला पाहिलं की फार मोठा गाजावाजा ज्या आरक्षणाचा करत होते, तो जो मराठा समाजाला आरक्षणाचा विषय होता ते आरक्षण मिळालं, परंतु त्या आदेशामध्ये ज्या वेळेला मुस्लिम बांधवांनाही आरक्षण मिळालं आहे, हे ज्या वेळेला सगळ्यांना राज्यभर वाचायला मिळालं, त्यावेळेला या सगळ्या या आदेशामध्ये याच्या पाठीमागं काय ताकद आहे किंवा हे करण्याच्या पाठीमागं कोणाची एक चांगल्या पद्धतीची काम करण्याची भूमिका आहे, हे ज्यावेळेला चेक केलं गेलं त्यावेळेला मंत्रिमंडळात असणाऱ्या आदरणीय खान मॅडमचा आपल्याला आदराने या ठिकाणी उल्लेखच करावा लागेल, कारण जो इतिहास घडला आहे की जो इतिहास घडण्याच्या पाठीमागं मॅडमनी पाठीमागं त्या आदेशात या मुस्लिम बांधवांनाही आरक्षण देण्याच्या फार मोठी भूमिका निभावली आहे। या आरक्षणाच्याच माध्यमातून शैक्षणिक आणि सामाजिक ज्या सुविधा मिळणार आहेत त्या फार मोठ्या प्रमाणात
अत्यंत महत्त्वाच्या अशा आहेत. या ठिकाणी या उर्दू मुख्याध्यापक संघाने आणि उर्दू शिक्षक संघाने पाठीमागच्या 14 वर्षापासून मला या राज्यभरामध्ये एक शिक्षणाच्या क्षेत्रातली एक संघटन म्हणून चालवत असताना जी सोबत दिली आहे ती खात्रीनं माझ्या बरोबरच नव्हे तर माझ्या पुढेही जाऊन काही त्यांनी या ठिकाणी पावलं टाकली आहेत आणि त्यांनी टाकलेल्या पावलाला अनुसरूनच मला सुद्धा पाठीमागच्या 14 वर्षभर बळ मिळत आहे आणि त्या बळाच्या जागेवरतीच बांधवांनो मी सुद्धा 2008 साली या राज्यामधलं पुणे विभागाचं जे शिक्षणाच्या क्षेत्रातलं इलेक्शन झालं होतं MLCचं, त्या इलेक्शनमध्ये मी एक उमेदवार निवडून आणण्यासाठी मॅडमने प्रचार प्रमुख म्हणूनच 5 जिल्ह्यामध्ये त्यावेळेला फिरलो होतो आणि त्याचाच एक धागा पकडत पकडत या माधवाने मला पुढे गेल्यामुळं परवा झालेल्या जून महिन्यातल्या इलेक्शनमध्ये मी सामोरे गेलो. मला प्रचंड मोठी ताकद जी दिली गेली ती ताकद खात्रीनं त्या उर्दू शिक्षकाने उर्दू मुख्याध्यापक बांधवाने दिली आहे. त्यामध्ये खास करून मी उल्लेख करेन या ठिकाणी जब्बार सरांचा की ज्या जब्बार सरांनी 2008 सालीच मला सांगितलं होतं आता ठीक आहे आपण पश्चिम महाराष्ट्रातल्या सगळेच जिल्हे आपण सामूहिक पद्धतीने लढत असलो तरी पुढल्या वेळेस मात्र आपण सोलापूर जिल्हावासी म्हणून लढायचं आहे. आणि त्यावेळेला त्यांनी दिलेली जी मला प्रेरणा होती ती प्रेरणा घेऊन मी जून महिन्यातल्या इलेक्शनला उतरलो होतो. त्यामध्ये ज्या सोलापूर जिल्हावासियांनी नुसती सोबत नाही दिली तर 5 जिल्ह्यामध्ये जेवढ्या पण उर्दू शाळा होत्या तेवढ्या सगळ्या उर्दू शाळेमध्ये जाऊन नव्हे बाकीच्या जनरल शाळेमध्ये सुद्धा जाऊन ज्यांनी प्रचार केला त्याच्यामध्ये प्रथमतः मी या ठिकाणी नामोल्लेख करेन या शहराचे महाराष्ट्र राज्य शाळा कृती समितीचे सरदार नदाब सर आणि एजाज सर, रंगरे सर, केरुल सर यांनी 5 जिल्ह्यामध्ये दौरा केला आणि सगळ्याच उर्दू शाळेमध्ये जाऊन हा माझा सख्खा भाऊच या ठिकाणी उभारला आहे त्याला तुम्ही सहकार्य करा इतकं त्यांनी खात्रीने सांगितलं. म्हणूनच मला या 5 जिल्ह्यामध्ये 1 नंबरचं जे मत मिळालं आहे त्या 1 नंबरच्या मतामध्ये खात्रीने या उर्दू शाळा मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांचा प्रचंड मोठा वाटा आहे. कारण एकूण टोटल जे मतदान झालं आहे त्यामध्ये मॅडम मी या ठिकाणी खास सांगतो आहे की एकूण टोटल मतदानाच्या 50% मतदान मला एकट्याला मिळालंय आणि 50% मतदानामध्ये 11 उमेदवार आहेत. एवढं मोठं मतदान मला देण्याच्या पाठीमागे खात्रीने जो भाव आहे या शिक्षकांचा तो इतकाच आहे. कारण या संघटनेमध्ये जे वंचितांना घेऊन पाठीमागच्या 14 वर्षामध्ये एक संघटनेचा प्रतिनिधी म्हणून मी लढत होतो त्यावेळेला आपल्याकडे मी भरपूर वेळा आलो आहे. ज्या वेळेला आलो आहे त्या वेळेला आपली काम करण्याची पद्धती खात्रीनं माझ्या मनामध्ये आहे. आपलीच पद्धत खात्रीनं भविष्यामध्ये विधान परिषदेमध्ये त्याच पद्धतीने मी सुद्धा काम करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. पाठीमागच्या 2 महिन्यापूर्वी एक काम घेऊन मी आपल्याकडे आलो होतो. त्या ठिकाणी विनामन शाळांची लिस्ट लागण्याचा विषय होता. आदरणीय मॅडमनी त्या ठिकाणी खास करून लगेचच रिमार्क मारला आणि रिमार्क मारल्यानंतर बांधवांनो मी संघटनेचा प्रतिनिधी म्हणून त्या ठिकाणी गेलो होतो आणि तेच मॅडमनी मारलेला रिमार्क त्यांच्या सचिवांच्या मार्फत ज्या वेळेला विभागीय विभागामध्ये गेला शिक्षण विभागामध्ये त्यावेळेला यादी लागण्याचं काम मला वाटतं फक्त 24 तासामध्ये नंतर झालं. त्यामुळं खात्रीनं मॅडम आपल्याला नुसतं धन्यवाद देऊन थांबणार नाही तर आपल्या ऋणामध्येही मी राहील. कारण ह्या शाळा ज्या होत्या जाहीर होणाऱ्या पात्र म्हणून त्या शाळा पाठीमागच्या 10 वर्षापासून वेटिंगला आहेत आणि त्यांची वेटिंग आपण त्या ठिकाणी संपवली आहे. त्यांच्या शाळा या राज्यामध्ये आता पात्र म्हणून गेल्यापुढं त्यांच्या तरतुदीचा विषय आला आहे. त्या तरतुदीला विषय घेऊन मी खास करून आपल्याला सर्व बांधवांच्या सहित आपल्याला सांगेन की या राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय दादांच्या अध्यक्षतेखाली परवा 8 जुलैला बांधवांना एक बैठक घेतली आहे. त्या बैठकीमध्ये शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवा आणि सगळेच अधिकाऱ्यांना घेऊन त्या ठिकाणी दादांनी त्यांना जी पहिली यादी त्याच दिवशी अनुदानित करायला त्यांना भाग पाडलं आणि भविष्यातला सुद्धा या सोलापूर जिल्ह्यासहित राज्यातल्या ज्या शाळा पात्र झाल्या आहेत त्या शाळेमधील बांधवांना आणि भगिनींना वेतन मिळावं म्हणून खात्रीने डे टू डे कामकाज एका संघटनेचा राज्याचा प्रदेश सचिव म्हणून आणि तुम्ही विश्वास ठेवून मला निवडून दिल्यामुळे या सर्वोच्च सभागृहातला सदस्य म्हणून खात्रीने भविष्यामध्ये मी काम करणार आहे हेही आपल्याला या ठिकाणी मी अवचन देतो. आणि दुसरंही माझं अवचन या ठिकाणी आपल्याला इतकंच असेल की बांधवांनो शालेय शिक्षण विभागाचाच विषय नाही तर एका सर्वोच्च सभागृहाचा सदस्य म्हणून आपल्याला जीवन जगत असताना विभाग कोणताही असू दे त्या विभागामध्ये जर आपल्याला व्यवहारामध्ये कुठेही जर काही अडचण आली कार्यालय कुठलेही असू दे त्या कार्यालयामध्ये जर आपल्याला अडचण आली तर दत्ता सावंतला आणि महाराष्ट्राच्या शाळा समितीच्या टीमला आपण पाचारण करा आपण कॉल करा. त्या ठिकाणी माझी संघटना आणि मी तुमच्या सोबत असेल इतकंच आपल्याला या ठिकाणी अवचन देतो. आणि बांधवांनो या ठिकाणी सगळ्यांचीच तुमची इच्छा आहे मॅडमच्या समोर एका वाक्यामध्ये
एक विषय सांगतो की पेन्शनचा विषय मॅडम निर्माण झाला आहे की जी पेन्शन 1 जानेवारी 2004 ला या देशामध्ये नवीन सुरू झाली आहे, आपल्या राज्याने ती 1 नोव्हेंबर 2005 ला अंमलात आणली आहे, पण तिच्या अगोदरचे नियुक्त कर्मचारी जे आहेत या राज्यामधले शिक्षणाच्या क्षेत्रात सेवेत आलेले की ज्यांची सेवा त्याच्या अगोदर 10 वर्षे झाली आहे, 15 वर्षे झाली आहे, 20 वर्षे झाली आहे, पण त्या शाळा अनुदानावरती फक्त येऊ शकल्या नाहीत. शाळा अनुदानावर न येण्याची कारण ते शासकीय पॉलिसीचा भाग आहे. अनुदान देणे हा शासनाच्या स्वेच्छेचा अधिकार आहे आणि त्याला अनुसरून ते अनुदानित झालेले होते, पण सेवा मात्र मोठ्या झाल्या आहेत. त्या बांधवांच्या पेन्शनचा विषय आल्यानंतर ज्या वेळेला की खरोखर अडथळेच येत आहेत अशी त्या ठिकाणी भूमिका शासन स्तरावरून मांडली जात होती, त्या भूमिकेला आपण छेद द्यावा. आपण मिनिस्टर या नात्याने नव्हे आपल्याशी चर्चा केलेली होतं, आपण एका वाक्यामध्ये आपण स्वाभाविकपणे आणि नैसर्गिक दृष्टीने सांगितलेली होतं. नव्हे आपला विचारही तो आहे की जे अगोदर सेवेत आलेले आहेत त्यांना खात्रीनं पेन्शन मिळेल, परंतु या बांधवांचं सगळ्यांची भूमिका आहे. अगोदरही मी त्यांना सगळ्यांनाच सांगितलं होतं. आमच्या नवाब सरांनी खास करून या ठिकाणी उल्लेख केला आहे. आपण आपल्या भाषणामध्ये आपण जो दिलेलंच वचन आहे त्याला अनुसरून एकदा आपण त्याचाही उल्लेख केला तर आमच्या बांधवांना फार मोठा आधार या ठिकाणी लाभेल. दुसरा एका वाक्यातला विषय मांडून आपल्यासाठी वेळ मी देणार आहे की जे ज्युनियर कॉलेज आहे की ज्युनियर कॉलेजला अनुसरून 2007-8 साली या राज्यामध्ये प्रवेशाचा प्रश्न निर्माण झाला होता 11वी ला, आणि तो प्रवेशाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी म्हणूनच 2008 साली या राज्यामध्ये एकाच यादीमध्ये 1495 ज्युनियर कॉलेजला मान्यता दिल्या गेल्या आणि त्याच्या पुढच्या कालावधीमध्ये काही शेमध्ये मान्यता दिल्या गेल्या. अशा पद्धतीने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 100 पेक्षा जादा कॉलेजला मान्यता दिल्या गेल्या आणि प्रवेशाचा प्रश्न एका चुटकीसरशी संपून टाकला. पण त्या कॉलेजमध्ये राबणारे जे अध्यापन करणारे जे अध्यापक आहेत त्या अध्यापकांचा कायम शब्द काढण्यासाठी मोठी आंदोलनाची उपोष्ट झाली आणि आपण सरकार म्हणून सुद्धा की 4 जूनला की ज्या वेळेला मी या विधान परिषदेचे सदस्यही नव्हतो त्यावेळेला आपण एक मोठा निर्णय घेतला आणि 4 जूनला आपण तो कायम शब्द काढला. शब्द काढल्यानंतर 2 महिने उलटून गेले आहेत. त्यांचा जो मूल्यांकनाची प्रक्रिया आहे ते मूल्यांकनाची प्रक्रिया जर तात्काळ सुरू झाली तर खात्रीनं मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेमध्ये काही महिने जाणार आहे. त्या महिन्यानंतर मात्र यादी लागणार आहे, नंतर तरतुदीचा विषय येणार आहे, परंतु ते मूल्यांकन होण्याच्या अगोदरचा जो कॅम्पचा विषय आहे की जी मी एक वाक्यामध्ये आपल्याला शेजारी बसल्यानंतर सुद्धा बोललो होतो, खात्रीने एक व्यवस्थित मी निवेदनही आपल्याला जात असताना देणार आहे. त्यांचं कॅम्प लागून मूल्यांकन व्हावं इतकीच एक माझी नव्हे माझ्या या सगळ्या बांधवांची अपेक्षा आपल्यासमोर ठेवतो आहे. खरं तर मी या विभागाचा प्रतिनिधी म्हणून तुमचं प्रथमतःच मी स्वागत करणं अपेक्षित आहे. विभागाचा एक लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्या मनापासून या ठिकाणी सोलापूर नगरीमध्ये आलात म्हणून आपलं स्वागतही आहे. आपले काम करण्याची भूमिका मला अगोदरच माहिती असल्यामुळे या 2 विषयाला सुद्धा आपण खात्रीने हात घालाल इतकी मनामध्ये भूमिका ठेवतो. या संघटनेनं मलाही या ठिकाणी सत्कारित केलं, मला एक पुरस्कार देऊन माझ्या खांद्यावरती शाल दिली. खात्रीनं त्या शालीला धरून खात्रीनं या संघटनेला सुद्धा माझं अवचन आहे. आपली जी मनातली भूमिका ठेवून माझा या ठिकाणी सत्कार झाला आहे त्या सत्काराला अनुसरून मानवाला भविष्यामध्ये माझे कामकाज असेल इतकं अवचन देतो आणि जास्त वेळ न घेता थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. अभी सिर्फ 2 तकारीर बाकी हैं, एक मालदार साहब की और एक मैडम की. उससे पहले 3 अलग-अलग इदारों की जानिब से सावंत सर का, मैडम का इस्तकबाल किया जाएगा, सराज साहब का. फिर उसके बाद 2 तकारीर होगी, फिर उसमें शुक्रिया होगी. मैं नूरुल हुदा एजुकेशन सोसाइटी के रुकन प्रेसिडेंट अब्दुल गनी इब्बी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और मैडम और सावंत सर की खिदमत में फूलों का हार पेश करें. फिर इसके बाद अल कुरान एजुकेशन ट्रस्ट के बलूल खान साहब, अब्दुल हमीद बलूल खान साहब, शेख बलूल खान साहब, सरफराज बलूल खान साहब से जमा से जो आए और मैडम नूरुल हुदा एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से ये शॉल और फूलों का हार. बहुत बहुत शुक्रिया. इसके बाद फेम ये उस्मानिया ट्रस्ट की जानिब से जनाब बलूल खान साहब और अब्दुल हमीद बलूल खान साहब के हाथों मैडम की खिदमत में हार. आप उर्दू एकेडमी के रुकन रह चुके हैं अब्दुल हमीद बलूल खान साहब. इसके बाद मैं जाहिर अली खान साहब पुणे जोन के कारगुजार सदर और ऐसे जब्बार फूलों का हार. थोड़ा सा इधर ये फेम के कारगुजार सदर जनाब जाहिर अली खान साहब और डॉक्टर अखलाक उडवान साहब
प्रिंसिपल अब्दुल जब्बार शेख साहब, प्रिंसिपल एस जब्बार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद आखिर जो इस्तकबाल है उर्दू एकेडमी सोलापुर के नौजवानों की जानिब से मैडम की खिदमत में और सावंत सर की खिदमत में फूलों का हार और ये इस्तकबाल आखिरी इस्तकबाल है। इसके बाद ये मुस्तक़बिल है, अल्लाह इनके हौसलों को हमारे हौसलों को तकलीफ दे। इसके बाद आखिरी उर्दू मुख्याध्यापक संघ की जानिब से सर्व सेक्रेटरी के जानिब से मोहतरमा फौजिया खान साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रात, थोड़ा तरतीब को बदलते हुए मैं चाहूँगा कि डॉक्टर नूर अहमद मालदार साहब शुजापुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अपने ख्यालात का इज़हार करें। मालदार सर के लिए जोरदार तालियां। इंडिया इन्होंने आज जो प्रोग्राम बनाया है, इस प्रोग्राम में एक किताब का प्रकाशन हो गया है जिसे लिखा है जनाब सिराज चौधरी साहब ने, और अपने यहाँ के सोलापुर में जिन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है, ऐसे आपके नए आमदार दत्तात्रेय सावंत साहब जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और अपने यहाँ के आज के चीफ गेस्ट और सरकार मोड के जो बताते हैं मोहतरमा फौजिया खान साहिबा और आईएएस से और आईएएस के आगे जो अपने यहाँ पे जिम्मेदारान अहम शख्सियत मौजूद है। सबसे मैं इतना ही कहूँगा कि इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया, मुझे शामिल होने का मौका दिया, ये बड़ी खुशी की बात है। सोलापुर के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज यहाँ पे जो प्रोग्राम बने हैं ऐसे प्रोग्राम मतलब बार बने। दो किताबें इस तरह साहब ने लिखी है, मैं चाहूँगा कि ऐसे बहुत सी किताबें आगे भी आए, और ये भी चाहूँगा कि अपने जो नए आमदार साहब अपने हैं वो तालीम से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन से जुड़े हैं, और प्राइमरी सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए जो भी मसले अपने पास है उसमें वो मदद करेंगे, मैं जानता हूँ। अभी एक कांग्रेस में हमने उनको दावत दी थी, मगर कुछ काम की वजह से वो नहीं आ पाए हैं, तो मैं उन्हें गुजारिश करूँगा कि वो वक्त निकाल के हमारे यूनिवर्सिटी में एक बार आए और उससे बातचीत करेंगे। हम सर चाहेंगे कि सोलापुर में जो अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं बच्चों को इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने यहाँ पे तालीम बहुत ज़रूरी है, और अपने यहाँ के आज जो मोहतरमा आए हैं वो एजुकेशन से जुड़ी हुई है। मैं ये कहूँगा कि उनका गाइडेंस के लिए हम बेताब है। मैं आपको और एक बार शुक्रिया कहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आए हुए तमाम मेहमान का हम फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हैं। सोलापुर कारपोरेशन की बाल कल्याण समिति की सभापति साहबा भी यहाँ पर मौजूद हैं, तरुनिसा सोडेवाली साहबा और बिस्मिल्लाह सिकंदर साहबा भी, उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं। आज मैडम को सुनने के लिए, मैडम को अवार्ड देने के लिए इस हॉल के तीनों हिस्सों में प्रोग्राम चल रहा है। कुछ लोग लाइव देख रहे हैं, कुछ लोग एलसीडी की मदद से नीचे देख रहे हैं। ये सब मैडम की मोहब्बत में और उन्हें सुनने के लिए, देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। कहते हैं कि बड़ी मुद्दत से साकी भेजता है ऐसा मस्ताना, बदल देता है जो बदला हुआ दस्तूर महखाना। तो ये जो बिगड़े हुए महखाने को मैडम ने एक रूप दिया है अपने काम की बदौलत, अपनी शख्सियत की बदौलत। हम तमाम शहर की जानिब से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला मैडम के हौसलों को यूं ही जिला दे, उनकी शख्सियत यूं ही उरूज पाती रहे, संवरती रहे और कौम के लिए वो मुफीद साबित हो। आज जो मिनिस्टर हैं, अल्लाह करे आपकी आवाज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल में गूंजती है तो आपकी आवाज़ पार्लियामेंट में भी गूंजे, आपकी आवाज़ असेंबली में भी गूंजे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं फिर एक बार इस शेर को दोहराते हुए कि बड़ी मुद्दत से साकी भेजता है ऐसा मस्ताना, बदल देता है जो बिगड़ा हुआ दस्तूर महखाना। मैं जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट में आवाज़ देता हूँ इस रियासत की वज़ीर तालीम मोहतरमा फौजिया खान साहबा को, जो आए और तकलीफ अपने हालात का इज़हार करें। वक्त की कोई बंदिश नहीं, जोरदार तालियां होंगी। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज इस रस्म इजरा और तफवीज़ इजाज़त के इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर
موجود शिक्षक मतदार संघ पुणे जिनको फखरे शोलापुर का एजाज दिया गया है, से नवाजा गया है, आमदार दत्तात्रेय सावंत जी, शोलापुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब नूर अहमद मालदार साहब, जिनकी किताब का इसमें इजरा हुआ है जनाब सिराज शोलापुरी साहब, महाराष्ट्र राज्य उर्दू एकेडमी के अध्यक्ष जनाब खुर्शीद सिद्दीकी साहब, जनाब बशीर परवेज साहब, शफी शाकिर साहब, जिनकी खूबसूरत तकरीर यहाँ पर आपने सुनी, फारूक सैयद साहब, और इस ऑर्गेनाइजेशन के रुकन खिदमत खल्क के मेंबर्स आसिफ इकबाल साहब, एजाज मंजूर आलम साहब, आबिद जमाल साहब, महमूद नवाज साहब, और यहाँ पर आए हुए सभी स्कूल्स के हेडमास्टर्स, सभी ऑफिसर्स, इस हॉल में और तीनों हॉल्स में मौजूद सभी मौजूद हाजिरीन, बहनों और भाइयों, ये एक अदबी महफिल है जिसमें आने का हमको मौका मिला, और इस अदबी महफिल में कुछ लम्हों के लिए हम अपना गम भी भूल सके, क्योंकि अदब चीज ही ऐसी है कि वो रूह की ग़िज़ा होती है। जो यहाँ पर तकारीर हुए, जो शायरी हमने सुनी, जिन लोगों के बीच हम यहाँ मौजूद हैं, ये सब एक तस्कीन पहुँचाने वाला माहौल है, और इस माहौल में बहुत कुछ जो सामाइन है उनसे भी ताल्लुक इस माहौल का है, क्योंकि ये सब तालीम से ताल्लुक रखने वाले सामाइन हैं, और जहाँ इस तरह का तालीम और अदब का माहौल है, वहाँ एक ऐसी फिजा है जो आप और हम सब इससे आज मसरूर नजर आ रहे हैं। बहनों और भाइयों, आपसे कहा गया कि हमारे पास एक दुखों का पहाड़ पर टूटा हुआ है 2 दिन पहले, और बिल्कुल हमारा दिल नहीं कर रहा था कि हम अपने घर से बाहर निकले, लेकिन जब ये बच्चे हमारे पास आए, इन्होंने इसरार किया कि हमारी कोशिशें हैं, आप आइए। 10 साल पहले भी मैं यहाँ आई थी, बहुत सारे प्रोग्राम जब आप लोगों ने किए थे, लेकिन आज का यहाँ पर आना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। पैर नहीं उठ रहे थे, पाँव नहीं उठ रहे थे, लग रहा नहीं था कि हम यहाँ आ सकेंगे। लेकिन एक बार मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमें यहाँ आने का इसरार किया, क्योंकि यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत हल्का महसूस हो रहा है। और मुझे एरिस्टोटल, उर्दू में अरस्तु कहते हैं, उनकी थियरी का ख्याल आ रहा है। इंग्लिश लिटरेचर की मैं स्टूडेंट हूँ, और एरिस्टोटल की थियरी में एक थियरी है जिसको थियरी ऑफ कैथारसिस कहते हैं। थियरी ऑफ कैथारसिस वो है कि जिंदगी में दुख और दर्द और हमारे बहुत सारे मसाइल हर एक को होते हैं, हर एक की जिंदगी में टेंशन होता है, लेकिन जिस तरह इंसान का जब पेट खराब होता है तो जुलाब लेता है अपना पेट साफ करने के लिए, उस तरह अगर लिटरेचर, ड्रामा, पोएट्री, इस का असर अगर इंसान पर होता है तो वो इस फर्गेशन की तरह असर करता है, और वो
اس کے سارے جو دکھ درد ہے مسائل ہے وہ جس طرح جلاب کا اثر ہوتا ہے اس طرح ایک کیتھارسس کا پروسیس ہوتا ہے، وہ سب اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایرسٹاٹل کا جو تھیوری آف کیتھارسس ہے وہ صحیح طور پر آج مجھے اس کا عمل ہوتا ہوا یہاں پر نظر آ رہا ہے، کیونکہ سچ ہے کہ ایسا جادو ہوتا ہے ادب میں کہ وہ انسان کو بالکل خوش مزاج اور اچھا بنا دیتا ہے۔ اور جس طرح کی تقاریر میں نے سنی، فاروق شیخ صاحب نے جو بات کہی اور آپ نے جس طرح کی شاعری یہاں پڑھی، سچ میں ایسا لگا کہ بہت بلند طریقے کے پروگرام میں ہم یہاں حصہ لے رہے ہیں اور بالکل ساری فکریں دور ہو گئی ہے اور کے لیے بہت ہی اچھا لگا۔ ادب کا دوسرا جو کام ہے وہ ہے انسان میں فکر پیدا کرنا، صرف انٹرٹینمنٹ ہی نہیں ہے بلکہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ کیا مسائل ہیں، سماج کی کیا برائیاں ہیں، وہ کس طرح دور کرنا چاہیے۔ میں جب آپ کی اس کتاب کو دیکھ رہی تھی، یہ خلش کہاں سے ہوتی، تو ایک شعر پر نظر پڑی، آپ کے ایک شعر پر، کسی کے حکم پر میں سر جھکاؤں میری اتنی بھی لاچاری نہیں ہے، کسی کے حکم پر میں سر جھکاؤں میری اتنی بھی لاچاری نہیں ہے، اندھیرے کو اجالا کیوں لکھوں میں، قلم میرا سرکاری نہیں ہے۔ تو آپ کا قلم سرکاری نہیں ہے، یہ سچ میں حقیقت ہے، اور ایک اچھے ادیب کا یہ فرض بھی ہے کہ آپ کا قلم اس طرح کا نہ ہو جس طرح کی سرکار کا ایک امیج بنا ہوا ہے، کہ سرکار کا ہر کام جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے جو بالکل بس بگاڑ ڈالنے کے لیے کام کیا جائے، اس طرح کا کام سرکار کا ہوتا ہے، ایسا ہم سوچتے ہیں اور ایسا ہمارا تجربہ بھی ہے، کیونکہ سرکار کا کام یہ ہے کہ آپ جو بھی عام جنتا کے لیے جو سہولیات سرکار سے مل رہے اس کو آسانی سے ملے، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ملے، جہاں پر اس کو رشوت نہ دینی پڑے، جہاں پر اس کو کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے، اگر وہ تحصیل میں جاتا ہو، کلیکٹر آفس میں جاتا ہو، کہیں گرام پنچایت میں جاتا ہو، اس کو بار بار چکر نہ کاٹنے پڑے، اس کا اتنا حال نہ ہو جائے کہ وہ بیزار ہو کر یہی کہہ اٹھے کہ یہ سرکاری کام ہے۔ اور اگر اس چیز کو بدلنا ہو تو پچھلے 5 سال سے مجھے ہمارے جناب شرد پوار صاحب نے ایک کھاتا میرے 8 کھاتوں میں سے ایک دیا جس کا نام ہے GAD، سامانیہ پرشاسن وبھاگ، اور اس وبھاگ میں وہ کسی کو اٹریکٹ نہیں کرتا ہے، یہ ڈپارٹمنٹ ایسا ہے کہ وہ چھپا ہوا پیچھے سے کام کرنے کا ڈپارٹمنٹ ہے، حالانکہ اس میں سبھی ڈپارٹمنٹس جو ہے اس کے تحت ہوتے ہیں، کیونکہ جو پرشاسن ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو کام کرتا ہے، ان کو کس طرح اچھا کام کرنے کے لیے ہم ان کی صلاحیتوں کو بڑھائیں، ان کے لیے کس طرح کے رولز ریگولیشنز بنائیں، اس طرح کا یہ کھاتا ہے۔ اور اس میں ہم نے بہت کوشش کی کہ یہ آپ کا جو سرکاری کام کی جو سوچ ہے وہ ہم بدل سکیں۔ سب سے پہلے ہم نے ای گورننس پالیسی کی شروعات کی، کیونکہ جہاں بھی ہیومن انٹرونشن ہوتا ہے وہاں کرپشن آنے کا چانس ہوتا ہے۔ کسی بھی سرکار میں، کسی بھی گھر میں، کسی بھی ادارے میں، کہیں بھی کرپشن صرف سرکار سے جڑی ہوئی چیز ہے ایسا میں نہیں مانتی۔ کرپشن وہاں ہر جگہ ہے جہاں انسان ہے۔ آپ سب تعلیم کے میدان میں کام کرتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے بچوں سے کہا ہوگا کہ بھائی میرے گھر آؤ، میں آپ کو ٹیوشن دیتا ہوں تاکہ میں آپ کو تھوڑا سا اور
अच्छी तरह पढ़ा सकूं, ये भी करप्शन का एक तरीका है। जब माँ बाप ने ये कहा कि भाई मेरे बच्चे को जरा अलग से आप पढ़ा दो, क्योंकि अगर आप पढ़ाएंगे तो ये मैं आपको थोड़ा सा खुश कर सकूंगा, ये कर दूंगा, वो भी एक करप्शन का तरीका है। तो यहाँ से करप्शन की शुरुआत है और फिर वो कहीं तक भी पहुँचती है। इस करप्शन को अगर दूर करना है तो इंसान की मदाखलत कम से कम करनी होगी, और इसलिए ई गवर्नेंस पॉलिसी हमने लाई। ई गवर्नेंस पॉलिसी में हर डिपार्टमेंट में सेल बनाया गया, 0.5% उनका फंड उसको देने का कंपल्शन हमने किया कि हर एक ने अपना इस सेल के जरिए से हर एक ने अपने डिपार्टमेंट में एक ट्रांसपेरेंट तरीके का काम शुरू करना चाहिए, और उसकी शुरुआत की गई। बहुत मंजिलें अभी बाकी है, लेकिन शुरुआत की गई। ई टेंडरिंग शुरू हो गई, कोई भी परचेस में जो है सब हेल्थ डिपार्टमेंट भी मेरे पास है, और उस हेल्थ डिपार्टमेंट में भी हमने ये कोशिश की कि प्रोक्योरमेंट पॉलिसी नई हमने लाई है स्टेट के लिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत ट्रांसपेरेंट हमने जो है काम करने की कोशिश की, और जेनेरिक ड्रग्स सिर्फ खरीद कर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बीच में कोई मिडिल मैन नहीं, जेनेरिक ड्रग्स जिसमें हमारे पूरे लोगों के लिए, आप सबके लिए जो फायदा हुआ है कि बहुत कम प्राइस में, सरकार का भी बहुत कम खर्च जिस पर हो रहा है, हम दवाएं खरीद करने का काम कर सक रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज मुफ्त दवाएं देने की भी शुरुआत हमने कर दी है, और सभी सरकारी दवाखानों में 450 ऐसे ड्रग्स हैं जो किसी को भी, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर वो दवाखाने में जाता है तो उसको मुफ्त में दवाएं भी तकसीम करने का, मुफ्त इलाज तो है, उसके साथ साथ मुफ्त दवाएं भी देने की योजना शुरू की। बहुत सारे किए गए हैं। आज आमदार साहब, आज आपल्याला मागणी करण्याची वेळ नाही आहे, आता रिपोर्ट कार्ड देण्याची वेळ आहे, कारण परीक्षा झालेली आहे, और अब 4-8 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। जो कुछ करने की कोशिश की गई है वो मालूम होने की जरूरत है। मैं 100% आपसे मुत्तफिक हूँ कि फिक्र होनी चाहिए, और सरकारों को भी काम करने के लिए अगर कोई चीज मजबूर करती है तो वो अदब है, और जब तक आप फिक्र करने वाला अदब, फिक्र पैदा करने वाला अदब अगर पैदा नहीं करते हैं तो ना हमारी जनता में कोई फिक्र पैदा होती है, ना जनता का जो है इलाज करने के लिए उनके मसाइल का सरकार में कोई फिक्र पैदा हो सकती है। बड़ी तकलीफ हो रही थी जब यहाँ एक बात मैंने सुनी कि कोई तो पढ़े, इस किताब को कोई तो पढ़े, ये बात यहाँ पर कही जा रही थी, और ये बहुत ही कड़वी हकीकत है कि आज हमारे पास पढ़ने वाले बहुत कम हो गए, लिखने वाले भी उस तरह जो है उनकी हिम्मत अफजाई कम होती रहेगी जब तक लोग पढ़ेंगे। और अदब तो तहजीब से जुड़ी हुई चीज है, अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तहजीब भी खत्म हो जाएगी, और हमें तहजीब को ढूंढना पड़ेगा, यानी हमें अपने आप को ढूंढना पड़ेगा। जैसे मीर तकी मीर ने कहा कि बेखुदी ले गई है कहाँ हमको, देर से इंतजार है अपना। क्योंकि अगर हम इतने बेखुद रहेंगे कि हमारे आज असातिज़ा पढ़ रहे हैं क्या, जनरल रीडिंग कर रहे हैं क्या, अगर उनका एक एग्जामिनेशन हम उनके टेक्स्ट बुक पर लेते हैं, हंगामे तो बड़े होते हैं, संगठनाएं बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन संगठनाओं का काम ये भी है कि तालीम का दर्जा सुधारने के लिए भी सख्ती का अगर कोई डिसीजन लेने की नौबत आए तो उसका भी साथ दे। बहुत सारे संगठनाओं ने हमारे कई सख्त डिसीजंस भी जो हमने लिए हैं अपने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसका साथ दिया। मुझे इस बात का उन लोगों को मुबारकबाद मैं संगठनाओं को देना चाहती हूँ कि आप सिर्फ टीचर्स की सर्विस रिलेटेड मसाइल ही नहीं लाते हैं, बल्कि शुरुआत आपने की है कि आप
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए अगर हम कोई सख्त कदम उठा रहे हैं, आपसे जब हमने बातचीत की तो आपने माना और आपने कहा कि हाँ ये कदम भी उठाना जरूरी है। अगर टीचर का एक टेस्ट लिया जाता है, 6ठी क्लास का टीचर है, उसका 6ठी क्लास की टेक्स्ट बुक पर अगर हमने एक टेस्ट लेकर देखा तो 30% टीचर्स इसमें पास नहीं हुए। और अगर ये टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो फिर हमारे हजार लाखों करोड़ों बच्चों की मुस्तकबिल का क्या? ये सब बातें भी हमको सोचने की जरूरत है। और आमदार साहब, आपने मूल्यांकन की बात कही। मूल्यांकन में पहली बार महाराष्ट्र में ये जो आप सबको शायद बहुत बुरा लगा होगा जो डिसीजन हमने लिया, लेकिन हमने लिया क्योंकि वो हमारे समाज के लिए फायदेमंद था। महाराष्ट्र पहला स्टेट था पूरे मुल्क में जिसमें स्कूल्स को जो हम परमिशन देते हैं, उस परमिशन में मूल्यांकन के निकष जो बनाए गए हैं, असेसमेंट नॉर्म्स जो बनाए गए हैं, उसमें 50% वेटेज हमने लर्निंग आउटकम पर रखा है। क्या पढ़ा रहे हैं, भले ही आपकी बहुत बड़ी इमारत ना हो, भले ही आपके पास बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ना हो, लेकिन अगर आपके बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, अगर उनका तालीमी मियार अच्छा हो, तो वो 50% में अलग से आपको मार्क्स हासिल करना है। 75% 50 में से अगर आपका स्कूल वो काम कर रहा है तो आपको सरकार जो है ग्रांट देकर स्कूल देगी। और जिसका मास्टर प्लान बनाया गया कि मराठी स्कूल्स हर 1 किलोमीटर पर दिए जाएंगे 5वीं तक, हर 3 किलोमीटर पर 8वीं तक स्कूल दिया जाएगा। कहीं ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर 1 किलोमीटर के अंदर बच्चे के पड़ोस में 5वीं तक का स्कूल नहीं है। ऐसा मास्टर प्लान बनाया गया। हर जगह स्कूल खोलने के लिए सरकार ने खुद पहल की या फिर प्राइवेट लोगों को देने की भी शुरुआत की। प्राइमरी में प्राइवेट बहुत कम है, सेकेंडरी स्कूल्स में दी गई। और माइनॉरिटी एजुकेशन पॉलिसी क्या है, तो वो यही है कि जहां मराठी स्कूल्स को जो हक दे रहे हैं अपनी मादरी जबान में तालीम हासिल करने का, 1 किलोमीटर दूर अगर आपके घर से जाना पड़े तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। 1 किलोमीटर के दायरे में ही आपका नेबरहुड स्कूल होगा और जहां आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो उर्दू मीडियम के लिए क्यों नहीं, उर्दू मीडियम के लिए भी ये होना चाहिए। वहां भी जहां पर उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है, उनको भी 1 किलोमीटर के अंदर उनका स्कूल मिलना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन की थियरी ये कहती है कि सबसे अच्छी तालीम प्राइमरी स्कूल की मादरी जबान में ही होती है। जो अपने मादरी जबान में पढ़ता है वो उसका हायर एजुकेशन के लिए ज्यादा अच्छी तरह वो तैयार होता है। तो मदर टंग में स्कूल हमको मिले, जहां हम चाहे वहां मिले, क्योंकि आर्टिकल 29-30 हम पर कोई बंदिश नहीं लगाता है कि सरकार हमें एक मास्टर प्लान लगा दे, सरकार तय करे कि कहाँ हमको स्कूल देना है। ये फैसला हमने लिया और इस फैसले को लेकर हम देखेंगे कहाँ पर जरूरत है, जहाँ अतराफ में स्कूल नहीं है वहाँ स्कूल देने का फैसला लिया गया। उसका GR निकाला गया। प्राइमरी स्कूल्स के लिए जिला परिषद को कहा गया कि आप मालूमात लीजिए, जहाँ जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ नए स्कूल शुरू कीजिए, सरकार आपको पैसे देगी। जहाँ 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो भी नॉर्म्स है वो आप शुरू कीजिए। सेकेंडरी स्कूल्स का भी फैसला बहुत जल्द हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू स्कूल जहाँ जरूरत है वहाँ हम दें। चल रहा है काम, कोशिश है कि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले ये हो जाए, ना भी हो तब भी फैसला तो हो चुका है। पूरा जो है स्टडी आ रही है, फाइल्स आ चुके हैं। अब हो सकता प्रोसीजरल डिले अगर हो जाए तब भी ये फैसला हो चुका है और सबको स्कूल्स मिलेगी। माइनॉरिटी एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने तैयार की है, उसमें ये सब देखने की कोशिश की गई है कि मादरी जबान में स्कूल बने, मादरी जबान के स्कूल्स के इंस्पेक्टर्स जो है वो मादरी जबान
वाले हो, उर्दू स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए अगर मराठी मीडियम का इंडिया आता है तो क्या इंस्पेक्ट करेगा, वो क्या देखेगा, लेसन प्लान, वो क्या पढ़ा रहा है, कैसे हो रहा है। इसलिए उर्दू स्कूल्स के लिए उर्दू इंडिया होना चाहिए। उसकी तरतीब कैसी हो, जहाँ पर स्टेट लेवल का की बॉडी हो वहाँ माइनॉरिटी का डायरेक्टरेट हो, जहाँ जहाँ डिविजनल डेप्यूटी डायरेक्टर्स के ऑफिस है वहाँ पर माइनॉरिटी का एक सेक्शन हो, जो वहाँ से इंस्पेक्शन हो, सुपरविजन हो, नए स्कूल्स हो, हॉस्टल्स हो, जो भी आर्टिकल 29-30 में हमको राइट्स दिए हैं वो सब की अच्छी तरह जो है अमलबजावनी हो रही है, ये देखने के लिए सरकार जिम्मेदार है। और उसने जिस तरह महिलाओं के लिए पॉलिसी बनाई है, बच्चों के लिए पॉलिसी बनाई है, सरकार ने जीरियाट्रिक पॉलिसी बनाई है, बूढ़ों के लिए युवक पॉलिसी बनाई है, नौजवानों के लिए, और जो वस्त्र उद्योग धोरण बनाया है और पर्यटन धोरण बनाया है। तो हमने सोचा कि ये सब धोरण तो बन रहे हैं, माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए भी होना चाहिए एक पॉलिसी, क्योंकि पॉलिसी की जो बात होती है, सरकार ने अगर उस पॉलिसी को अपना लिया तो फिर हर डिपार्टमेंट पर ये बंधन आ जाता है कि हमको अपने डिपार्टमेंट के जरिए से इस पर अमल करना है। तो फिर कानून बनते हैं, कायदे बनते हैं, स्कीम्स बनती हैं, हर डिपार्टमेंट से बनते हैं। आज हमारा पीएचडी मूल तो है, वो डिपार्टमेंट है, लेकिन एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स में भी माइनॉरिटी का जो है पूरी तरह एक अलग अलग सोच होनी चाहिए, अलग जो है उसकी लाइन ऑफ एक्शन होनी चाहिए। इसलिए माइनॉरिटी एजुकेशन पॉलिसी बने। मुझे लगता है आसिफ इकबाल साहब आपने सच कहा कि ये बहुत बड़ा काम है, और अगर ये काम अमल में आता है तो बहुत फायदा हो सकता है इस कौम का। और इसलिए ये छुपा हुआ काम है, लेकिन कोई इसकी पब्लिसिटी या ये नहीं हो सकती है, लोग समझ नहीं सकते हैं। आप तालीम याफ्ता है, आपको इसका एहसास हो सकता है अहमियत का, लेकिन हर जगह बात समझ नहीं सकते हैं लोग कि इस तालीमी पॉलिसी की अहमियत क्या है। हमने ये कहा कि इसका जो चेयरमैन है इसकी कमेटी, वैसे तो ड्राफ्ट फ्रेम में बनाकर ही दे दिया, रेडीमेड ड्राफ्ट, लेकिन तब भी उसको एक ऑफिशियल शक्ल देने के लिए हमने एक समिति तैयार की है ताकि उस पर बातचीत हो, फिर वो वेबसाइट पर रखी जाए पॉलिसी, फिर सबके उसमें सजेशंस मंगाए जाए। तो वजीर आला को ही उसका चेयरमैन हमने बनाया है, और उसके वाइस प्रेसिडेंट जो है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, और उसमें जो मेंबर्स हैं वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन है, मिनिस्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन है, उसके स्टेट मिनिस्टर्स हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर उसके मेंबर हैं, और सारे डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस और जो है जो मुताल्लिक डिपार्टमेंट से उन सब के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज इस कमेटी के मेंबर्स हैं, जो इस पर गौर करेंगे और जो है इस पर पॉलिसी तैयार होगी। बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ी। वैसे तो ये पॉलिसी बहुत पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए था, लेकिन मुश्किलात होते हैं, माइनॉरिटी में रहने की भी कुछ मजबूरियां हैं, और जिसकी वजह से हमको भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आज कमेटी तश्कील करने का काम हुआ है, रेडी ड्राफ्ट हमने दे दिया है, फाइल अब वज़ीर आला के पास है। अब उन्होंने जल्द इसकी मीटिंग लेनी चाहिए, उसके लिए हम पीछे पड़ेंगे। पहली मीटिंग अगर उनके चेयरमैनशिप में हो जाए तो एक काम आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आने वाली सरकार में भी ये काम आगे रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इक़दाम हमने उठाए हैं, इसके ज़रिए से भले ही लंबी लड़ाई है, आसानी से काम होते नहीं हैं, क्योंकि जिन हालात का हम सामना कर रहे हैं इस मुल्क में, और जिस तरह से हमारा समाज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो या रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट हो या महफूजुर रहमान समिति जो तश्कील की गई, उन्होंने जो सब हमारे सामने फैक्ट्स रखे हैं, इस सब से एक ही बात जाहिर होती है
एक ही तस्वीर सामने आती है कि तेरी दुनिया जहाने मुल्क माही, तेरी दुनिया जहाने मुल्क माही, मेरी दुनिया फुगाने सुबह गाई, तेरी दुनिया में मैं महकूम मजबूर, मेरी दुनिया में तेरी बादशाही। ये जो हाल है आज सारे मुल्क में हमारा, उसके लिए अगर एक बहुत बड़ा तारीखी कदम हम उठा सके तो मुस्लिम कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने का, जिसमें बहुत अच्छी तरह, बहुत अक्लमंदी से ये कोशिश की गई कि ये सारा मसला जाकर कोर्ट में कहीं खत्म ना हो जाए, और अगर उसको खत्म नहीं करना है तो हमको मुस्लिम शब्द वहाँ, मुस्लिम लफ्ज वहाँ पर लाना नहीं है, बल्कि उस समाज में जितने कम्युनिटीज हैं उनको शामिल करने की कोशिश की जाए। वो सैयद है, वो पठान है, वो गाजी है, वो मुगल है, वो बेग है, वो 50 कम्युनिटीज के नाम निकाले गए जो ओबीसीज में नहीं है, उनकी स्पेशल कैटेगरी बनाई गई, और वो स्पेशल कैटेगरी को 5% तालीम में और एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन देने का फैसला इस सरकार ने लिया है। मैं ये उम्मीद कर रही थी कि बहुत खुशियां मनाई जाएंगी, जगह जगह मुझे सब डिजिटल बैनर्स दिखेंगे, जगह जगह मुझे अखबार में एडवर्टाइजमेंट्स दिखेंगे, पटाखे फोड़े जाएंगे, हमारा समाज खुश हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर तो नजर नहीं आई। पता नहीं, शायद भरोसे का सवाल है, शायद हमको ऐसा लग रहा है कि सच में ये हो रहा है क्या, सच में सरकार इतनी ईमानदार है क्या? मेरे ख्याल से तो इस तरह की बात सोची जा रही होगी, और इसलिए शायद ये तस्वीर हमको देखने को नहीं मिली। मगर ऐसा लगता है कि आने वाले इस असेंबली इलेक्शंस में जरूर ये पटाखे और ये डिजिटल बैनर और बाकी चीजें, खुशियां अगर नजर नहीं आई तो वहां हमको कुछ असर नजर आएगा, ऐसा मुझे जरूर लगता है, क्योंकि दुनिया गिव एंड टेक है। गिव एंड टेक के सिवा दुनिया नहीं चलती है, क्योंकि माँ भी जो है बच्चे को तभी दूध पिलाती है जब वो रोता है, और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उसको उम्मीद रहती है कि मेरा बच्चा मुझे संभालेगा, इसलिए मुझे बेटा ही हो, कहीं बेटी ना हो जाए, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी तो बेटा ही होता है, और इसलिए बेटी जब पैदा होती है तो हम मुस्कुराते नहीं हैं, हालांकि जन्नत की बशारत है वो, लेकिन हम फिर भी बेटा ही पैदा हो, तो ये भी गिव एंड टेक है। और इस तरह का गिव एंड टेक जो है वो दुनिया का दस्तूर है, तो हमारा आप लोगों से इस बात का उम्मीद करना शायद गलत नहीं है, और अगर हम ये बात करना चाहते हैं तो एक ही मैं शोलापुर में आप लोगों से बात कहना चाहूंगी कि पता नहीं इलेक्शन हमारे पास ही क्यों इतनी खुशियों के साथ आते हैं, सारे ढोल ताशे बाजे गड़बड़ धूम इन इलाकों में ही क्यों नजर आती है, और सारे कैंडिडेट हमको यहीं पर से क्यों नजर आते हैं, जो 10, 20, 25 कैंडिडेट हम बैलेट पेपर पे अगर नाम पढ़ते हैं तो बहुत सारे नाम नजर आते हैं, और उन सब नामों के आगे 200 वोट, 100 वोट, 50 वोट, 1000 वोट हमें क्यों नजर आते हैं, ये बात पर हमको गौर करना होगा। अगर ये तस्वीर नहीं रहती है तो हम बेहैसियत नहीं रहेंगे, और हमारी भी जो है एक इज्जतदार जिंदगी हमारे मुल्क में हम गुजार सकेंगे, क्योंकि पिछला जो इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, इसमें हमको कुछ ऐसे हालात नजर आए हैं कि हमको ये जो चीजें हैं इन पर फिक्र करने की जरूरत है, और हमको एक साथ आकर, भले ही सब फरिश्ते नहीं होते, लेकिन जो दूसरे शैतानों से थोड़े ठीक हैं उनका साथ देना अच्छा है, कम से कम उनके उसूल जो है वो हमारे लिए अच्छे होते हैं, हमें
नुमाइंदगी देते हैं। अब आप देखिए कि मैं तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ी, मैं तो तालीम में काम करने वाली जो है शुरू से रही हूँ, और मुझे घर से उठाया गया, MLC बनाया गया, मिनिस्टर बनाया गया, आटा खाते दिए गए काम करने के लिए। तो अगर नुमाइंदगी मिलती है तो कुछ आवाज उठाने का मौका मिलता है, कुछ काम हो जाते हैं। और अगर पार्लियामेंट में आज 20 भी आपके नुमाइंदे नहीं हैं, तो फिर वहाँ आवाज किसकी रहेगी और कौन पुकारेगा और कौन वहाँ पर कुछ कह पाएगा। इसलिए हम माइनॉरिटीज में हैं, हमें माइनॉरिटीज का एक डिसएडवांटेज जो होता है वो तो है ही हमारे लिए, हर मुल्क में होता है, दुनिया का दस्तूर है, लेकिन हमको इस बात को याद रखना होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे बाशऊर जो है, मुझे जिनके साथ आकर आज बातचीत करने का मौका मिला, ऐसी बातचीत तो हमको भी बहुत कम करने का मौका मिलता है, और इसलिए इस पर गौर जरूर किया जाएगा। इन बातों को हम जरूर सोचेंगे, हमारे शायर, हमारे अदीब भी इन बातों के बारे में जरूर लिखेंगे और हम सब जरूर पढ़ेंगे, और हमारे असातिज़ा को हम जनरल रीडिंग के लिए ताकीद करेंगे कि टेक्स्ट बुक तो पढ़िए, लेकिन लाइब्रेरीज को भी जाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। यूनिवर्सिटी के भी लोग पढ़ते नहीं हैं, रेडीमेड थीसिस लिख देते हैं, और इसलिए हमारे जो है यूनिवर्सिटीज भी, आज वाइस चांसलर साहब यहाँ है, इंडिया का कोई यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड के 200 टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं पहुँच पाई है, क्योंकि हमारे पास उस तरह का रिसर्च नहीं होता है, हम पढ़ते नहीं, हम मेहनत नहीं करते हैं। हमको उसकी शुरुआत करनी होगी। आपका जो खिदमत कल्ब है वो अदब की खिदमत करता है। ऐसे लोग अगर सामने आते रहें तो जरूर हमारा माशरा जो है वो फिर से तहजीब याफ्ता और बुलंद जगह पर हमको नजर आएगा, इसकी मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा है। आपने मुझे यहाँ दुख्तर हिंद के जो है एजाज से नवाजा। दुख्तर हिंद तो हर औरत पैदा होती है, मैं भी पैदा हुई हूँ, और आई एम द डॉटर ऑफ इंडिया, लेकिन आपने जो ये एजाज दिया है इससे एक अलग सा सुरूर पैदा हो गया है। हुब्बे वतन समाए है आंखों का नूर होकर, सर पर खुमार होकर, दिल में सुरूर होकर। अहले चमन को अपनी बहारों पे नाज था, अहले चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। यकीनन मैडम बोलते रहे और आप सुनते रहे, और आपके चेहरों की कैफियत से ऐसे लग रहा है कि इस हॉल से निकलने के बाद तालीम के ताल्लुक से, पढ़ने लिखने के ताल्लुक से यकीनन बहुत सी तब्दीलियाँ शहर शोलापुर में आई। मैं बगैर किसी तमहीद के रणजीत राबी जमाल साहब, सेक्रेटरी खिदमत कल्ब, को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और रस्में शुक्रिया अदा करें। रणजीत राबी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अली जनाब मालदार सर का शुक्रिया अदा करूँगा कि अपनी बहुत सारी मसरूफियत के बावजूद उन्होंने वक्त निकाला है, हमेशा से हमारे लिए वक्त निकालते आए हैं, और कभी उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी वो हमारे लिए वक्त निकालेंगे। और दुख्तर हिंद फौजिया खान साहबा, वो तकरीबन ऐसा मामला था कि वो कैंसिल कर रही थी आने का, मगर जब तालीमी मामला रहा तो पहुँच गई वो, क्योंकि शोलापुर से पुराना ताल्लुक है, 6 साल पहले की आई थी। और फख्र शोलापुर दत्ता सावन सर, ये तो जब भी हम आवाज़ें पहुँच जाते हैं, और हमारे फारूक सैयद साहब और शबीर शाकिर साहब और गोले साहब, खंडारे साहब, तहसीन अहमद खान साहब, शीशन साहब और आए हुए तमाम मेहमानों का अपना वक्त निकाल कर आए, और स्टेज के बैक जिन जिन लोगों ने काम किया, इन तमाम लोगों का मैं इनकी उम्मीद कर रही हूँ, उनसे शुक्रिया अदा करता हूँ, और सर जलसा की तरफ से ये प्रोग्राम यही खत्म हुआ, ऐसा ऐलान करता हूँ। शुक्रिया।
फुलानी सर या सर पुढे या एक मिनट थोड़ा पीछे